6 آدم پہلے گزرے ہیں، یہ 7واں آدم ہے. اور آدم ایک انسان نہیں ہے بلکہ مٹی سمجھ رہے؟ جی مٹی کی ایک خاصیت ہے، ایک تمثیل ہے. جس طرح مٹی کو آپ نے لوٹا بنا دیا، مٹی کو آپ نے کمرہ بنا دیا، مٹی کو لے کر جو ہے وہ ایک بند بنا دیا، یہ ایک تمثیل ہے، ایک انسان کی بات نہیں. جن کیڑا ہے، کیڑا وائرس. جی اور پتہ نہیں ایک اور بات جو کی جاتی ہے، وہ جن وہ ہے. آدم نہیں ہے، جنت نہیں ہے، تمثیلی بات ہے. شیطان نہیں ہے، تمثیلی بات ہے. فرشتے نہیں ہے، نیکی کو کہا جاتا ہے. شیطان آپ کے اندر جو بدی ہے وہ کہا جاتا ہے. جنت نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا چیز، صرف جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ حقیقی، باقی تمام باتیں وہ کہتے ہیں تمثیلیں ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. معذرت چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کی، بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے آسان الفاظ میں سمجھایا. میں اور ماشاء اللہ جامع مفصل بات کی آپ نے. سر ادھر فرق پھر کیا ہے؟ مطلب میں ایز اے مسلم، میں پھر اگر یہ بولوں کہ قادیانی نے، تو اگزامپل دے رہا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ احمدی، یا پھر کہ یہ جو ہے یہ غلام محمد قادیانی کو رسول مانتا ہے. سر آپ نے اگر انکار کر دیا تو مطلب پھر فرق کیا ہے ان دونوں کے ڈفرینس؟ پھر ڈفرینس سر کیا ہے ان کی مسلمانی اور ہماری مسلمانی میں؟ کیونکہ آپ تو ان سے مطلب آپ نے تو لا علمی کا ایک دم آپ نے تو قطعاً انکار کر دیا کہ اگر اس طرح ہے تو وہ تو مسلمان نہیں ہے. تو آپ مطلب خود کو بھی، اور تو میرے میں اور قادیان میں پھر کیا فرق ہے سر؟ ابھی اتنی باتیں اس پہ میں کلیئر نہیں ہوا سر. مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کا کیا سوال ہے بھائی. سر آپ نہیں سمجھے، میں نے کہا میرا تو ادھر تک کلیئر ہو گیا. جو آپ بول رہے ہیں، آپ ایک دم کلیئر بول رہے ہیں. قرآن اور حدیث کا حوالہ دے دیا، 4-5 آیاتوں سے زیادہ. اچھا معذرت، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا اکرام بھائی، آپ نہ صرف اتنا بتائیں، جو آپ نے ابھی پیر صاحب کی بات سنی ہے نا، اے پی اسکانی صاحب کی، آپ کو کیا سمجھ آئی اپنے الفاظ میں بیان کریں وہ ساری بات. سر نے تو ایک دم کلیئر کٹ کہا کہ مطلب جو لوگ غلام محمد قادیانی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں تو وہ احمدی ہے، احمدی مسلمان ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے یہ نہیں کہا وہ احمدی مسلمان ہے بھائی. جی سر آپ تھوڑا سا پلیز پھر سے وضاحت کیجیے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں. اور یہ بھی بات جان جائیے، یہ جو لفظ احمد ہے نا، قرآن مجید میں آیا اسمہ احمد. قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا کہ ایک نبی آئیں گے میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ان کے مرزا غلام محمد قادیانی ہیں. اس نسبت سے انہوں نے یہ نام رکھا. اچھا سمجھ آ گیا. جی اور یہ خود کو احمدی مسلمان، اصلی مسلمان. سر آپ کا گڈ نیم؟ میرا نام ہے پیر اسکانی. جی پیر اسکانی صاحب، آپ سوری بخشش کے ساتھ، آپ قادیانی مسلم ہے یا پھر احمدی ہے یا پھر مسلم ہے سر؟ میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی، قادیانی نہیں ہوں. قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں نبی. میں اس کو جھوٹا دجال سمجھتا ہوں. لیکن یہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. آپ ایک بات بتائیں، آپ گرافک، ایک منٹ خان صاحب، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں؟ جی سر. یہ جو ہم نے گرافک ڈیزائننگ کی ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے جو پوسٹر لگا ہوا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر سے پڑھیں نا. قرآن اچھا پڑھ رہا ہے یہ. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، تاجدار ختم نبوت. اس کا مطلب کیا ہے خان صاحب یہ جو آیات آپ نے پڑھ لی، ما کان محمد نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے والد، لیکن یہ صرف رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور نبوت کا دروازہ اس پہ بنے و خاتم النبی کی. اچھا جو دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو کذاب ہوگا. بات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ بالکل ختم ہو گئی. یہ ہے وہ بات. احمدیوں کو تھینک یو سو مچ. ہم لوگ سن لیجیے سر
बात सुन लीजिए इकराम भाई, आप इधर आते रहिए। बहुत गुस्से वाले हैं आप। नहीं, मैंने गुस्सा क्यों किया कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लोग आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये चाल चली हुई, अस्कानी साहब बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं है, बड़े प्यार वाले बंदे हैं। पता नहीं किसको मुसलमान समझे, कौन जो है सच्चा है कौन झूठा, पागल करके रख दिया है मुसलमानों ने भाई, समझ रहे हैं? जी सर। ये एक मुसलमान आके कहे कि अहमदी मुसलमान में और मुसलमान में क्या फर्क है, आपको मालूम नहीं है कि एक आग सा लग जाता है बदन में? बिल्कुल भाई अहमदी इस्लाम से खारिज, क्योंकि वो मानते हैं एक नबी, इतनी सी बात है। मुसलमान मानते हैं आखिरी एक नबी को, इतनी सी बात है। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैंने आप पे सख्ती की। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने जो भी बातें कही, इल्म किसी कोई भी मुझे इल्म का दो लफ्ज़ बोले बस मुझे वो शागिर्द समझे, गुलाम समझे, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आ गया, आपने आपको दे देता हूँ, मेरा जो है तस्वीर सही बना दीजिए और इधर आइए, ठीक है भाई? बिल्कुल सर, जरूर रहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। यूसुफी साहब, आप थोड़ा सा मजाक भी मेरा उड़ाया, लेकिन मेरा हरगिज़ तनकीदी मकसद से मैं नहीं आया। मैं किसी से मैं हर एक इंसान से कुछ न कुछ लेके ज़रूर जाता हूँ। थोड़ा सा इल्म हो, ज़्यादा इल्म हो। मैंने सर की बातें सुनी, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती आप सबको फॉलो करें और आते जाते रहा करें। हाँ जी, मुसाफिर जाट साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर जाट साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्कानी भाई क्या हाल है? ठीक है। ब्रेव भाई, ब्रेव। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। ब्रेव साहब खैरियत है? बाकी सब भाई ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा MI के ग्राफिक साहब, आपने काफ़ी गुफ्तगू की, अब जाते जाते ये बता दें, अब आपको पता चल गया कि अहमदी कौन है, अहमदियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जाते जाते एक बात बताते जाइएगा। जी बिल्कुल, सर ने बहुत क्लियर समझाया और बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल में इतनी वाज़ेह दलाइल के साथ मुझे शायद कोई कायल न कर सकता। थैंक यू सो मच भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आप इनकी लाइव पे आएंगे मैं भी सुनता हूँ, तो आपको ये इसी तरह, आपको नहीं सिर्फ हर बंदे को इसी तरह गाइड करते हैं। और एक चीज़ का मैं इजाफा कर देता हूँ, जो मैंने भी सुना हुआ है, हमारे तमाम जमातों के उलमाए कराम ने ये फतवा जारी किया कि जो बंदा नौज़बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा सा ज़हन में शक भी डालता है ना, तो वो भी बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल। अभी आपने ये सवाल उनसे कर दिया ना कि आप अहमदी हैं या मुसलमान हैं, तो इस पे हंसी भी आई। ठीक है सर। नहीं एक बंदा चौकीदार बन के बैठा है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाते जाते आपको सिर्फ ये बता दूं कि हर एक इंसान के जहन में कोई अशकाल या सवालात आ जाए तो उसकी रहनुमाई के लिए बुज़ुर्ग लोग होते ही ना, रहनुमाई करने के लिए। तो गुस्सा मुझे अचानक बहुत अजीब सा भी लगा कि मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सारा ये समझा कि ये कोई तनकीद के लिए, या फिर मेरा न कोई इल्म है, मैं गुनहगार इंसान हूँ। दूसरी बात ये है कि ये सवालात, उज़ैर अलैहिस्सलाम के जहन में एक सवाल आया कि या अल्लाह पाक, ये एक बस्ती थी, सर कुरान करीम को अच्छी तरह समझता है, तो बस्ती जो है वक्त नसर बादशाह नन पे हमला करके उजाड़ दिया था। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसे ही वो गद्दे के सामने, लंबा वाक़या में थोड़ा छोटा सा सुनाकर कि वो अल्लाह दिमाग में आया, या अल्लाह इनको वापस कैसे ज़िंदा करेंगे? तो 100 साल के लिए मर गए, और जब वो वापस ज़िंदा हुआ तो अल्लाह ने फरमाया उज़ैर कम लबिस, तो उन्होंने कहा कि यौमन, फिर सूरज को देख के आसमान के दरमियान में, फिर बाद में कहा आओ बाद यौम, फिर उसने फंजुर इला तामिक व शराबिक। तो अल्लाह ताला ने, वो पैगम्बर था, ऐसे क्वेश्चंस कर रहा था और अल्लाह ताला उनको प्रैक्टिकली समझा रहा था। जो वो उसका पूरा माइंड सेट होगा कि हाँ ये तो इस तरह जिंदा होते। तो फिर लास्ट में कहा क़ाल अअलम, या अल्लाह मैं जान गया, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है। तो हमारा काम है क्वेश्चन करना, आपका जवाब है मुझे जवाब देना। नहीं भी दे सकते तब भी खुश रहे, दिया तब भी दुआ निकली। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, थैंक यू सो मच। अच्छा इकराम साहब, अब जाते जाते अब आप ये तो बता दें कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे, उसको आप क्या समझते हैं? बिल्कुल वो क्लियर कट है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज है, कज़ाब है, कज़ाब झूठा है।
جھوٹا ہے. کذاب دجال جھوٹا سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل سر. چلے پھر ایک بار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگا دے. تھینک یو سو مچ. جو بندہ ختم نبوت ٹھیک ہے بھائی. جو بندہ ساری باتیں اکرام بھائی معذرت چاہتے ہیں پھر آپ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اکرام بھائی. نہیں سر, آپ نے اچھی طرح سمجھا دیا, بہت شکریہ آپ کا بھی. عامر بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے, ایک منٹ. ایک منٹ بھائی جان. مسلمان اپنے آپ کو جاہل شو کرے نا ان معاملوں میں تو بہت تکلیف ہوتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹا. نہیں کوئی بات نہیں سر, بہت کچھ شکریہ. ضرور پڑھیے اس بارے میں. ٹھیک ہے بھائی, ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے. بالکل سر. عامر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے تو بتائیے سر. عامر بھائی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ بات سمجھنے میں جو پیر اسقانی بھائی نے سمجھائی ہے؟ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ؟ جی سر. یہ ایک بندہ ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تقریباً 2 ہفتے سے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو آپ آدھے گھنٹے میں سمجھ گئے ہیں نا. یہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا بریو لیڈر, عمران خان کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. جی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو جو آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سر میں تو چھوٹا سا طالب علم. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جتنی دیر آپ گفتگو سنتے رہے, باتیں سنی ہیں, آپ نے کیا پایا؟ آپ یہ بتاؤ کہ جو احمدی ہیں لوگ, احمدی حضرات ہیں, وہ آپ کے نزدیک کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ بھائی صاحب جواب نہیں دے سکے تو آپ کیا سمجھا پائے ہو ان کو؟ جی بھائی, پوچھے برے ہو بھائی. گرافک احمدی حضرات کون ہیں؟ احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے جو آج کے دور میں احمدی کہلاتے ہیں. یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کون ہے؟ سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے, احمدی کو مانتا ہوں, بتاتا ہوں احمدیوں کے بارے میں بتاؤں. یہ کون ہے, یہ کس کو فالوور ہیں, یہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے اتنی دیر گفتگو سنی, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہو. میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. 1 سیکنڈ سر. جس طرح سر نے فرمایا کہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں, اس لیے ایسے لوگ دجال ہے, کذاب ہے, جھوٹے ہیں. یہ تو سر نے کہا ہی نہیں کہ وہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں. آپ اپنے پاس سے بتا رہے ہو, سمجھ نہیں آئی آپ کو نا؟ نہیں, ان کو سمجھ تو آ گئی ہے نا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سر نے سمجھایا کہ مرزا غلام احمد صاحب کو وہ آخری نبی مانتے ہیں, یہ تو سر نے کہا ہی نہیں ہے. کہاں سر نے کہا؟ سر نے یہ کہا ہی نہیں نا وہ آخری نبی مانتے ہیں. مرزا غلام احمد صاحب کو آخری نبی احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ آدھے گھنٹے میں سمجھ گئے. یہ سمجھ گئے یہ آپ کو؟ یہ ان کو تو بڑی اچھی سمجھ آئی ہے, بالکل صحیح سمجھے. سمجھ آئیے چوہان صاحب, آپ ایسے مائک کھول کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. مرزا غلام احمد صاحب کو مرزائی کہتے ہیں, یہ آخری نبی. ایک منٹ. یہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں سمجھ گئے ہیں. یہ آئی کے کہہ رہے ہیں کہ پیر اسقانی صاحب سر نے بتایا کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب آخری نبی ہیں. یہ تو سر نے فرمایا ہی نہیں, نہ ہی یہ احمدی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں. موقع دیجیے. اکرام بھائی, جی مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ سر نبوت کا ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نبوت دینا, تو ان دونوں میں تو سر کافی ڈفرینس ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو تو نبوت دی گئی, جو غلام احمد قادیانی ہے اس نے دعویٰ کیا, تو سر اس میں تو فرق ہے نا بھائی. میرے بھائی بات سنیے, جنہوں نے مانا وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے صحیح دعویٰ کیا نا, اس لیے تو اس کو نبی مانتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں غلام احمد کے بارے میں, مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں, اور وہ جو غلام احمد وہ مانتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ سر میں ناقص العلم ہوں, میرا اتنا علم نہیں ہے, بٹ جو بھی قرآن اور حدیث سے انحراف کرے اور خود کو نبی تصور کر لے, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی مقرر, تو ان دونوں میں تو لازمی ڈیفرنس تو ہوگا سر. تو کون حق پہ ہے کون جھوٹ پہ ہو تو سر آپ بھی آرام سے مطلب بتا سکتے ہیں. تو بریو لیڈر آپ کو بھی میں وہی بتا رہا ہوں جو سر نے بتایا کہ حق اور باطل ایک دم کیا بتایا. سر آپ ذرا پلیز خاموش ہو جائے نا. آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی کی گرافک کو آپ نے آدھے گھنٹے میں ٹرین کر دیا, ایک اور مجاہد کھڑا کر دیا احمدیوں کے خلاف, لیکن وہ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ گیا.
آپ ذرا خاموش ہو جائے. اکرام بھائی میری بات پھر سے سن لیجیے, مجھے ان سے سوال کرنے دیں کہ ان کو کیا سمجھ آئی. ایک منٹ, وہ میری بات نہیں سمجھے ہیں. نہیں, آپ باتوں باتوں میں دوبارہ سمجھا رہے ہیں ان کو, میں پھر سمجھاؤں گا نا, اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے پھر سمجھاؤں گا. یہ بھائی صاحب جو آپ کے نیچے یہ دعویٰ کر رہے تھے جی ان کو تو آدھے گھنٹے میں سمجھ آ گئی ہے, یہ بڑی اسکرین پہ جو لے آئے ہو جن کو. خان صاحب, میں ان احادیث کی روشنی میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں. اب جی یہ بھی فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے میری امت میں جو دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں اور فریبی ہیں. اب میں اس دعوے دار کو جس کا نام مرزا غلام احمد ہے اس کو اپنے دعوے میں جھوٹا مکار سمجھتا ہوں. جی اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور جو بھی اس کو مانتا ہے وہ ایک جھوٹے دعوے دار کو مانتا ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سر, میں تو وہی بھائی کو یہی بول رہا ہوں کہ جو بھی قرآن اور حدیث سے انکاری کلیئر کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک یہ نہیں شخص ہونا کی تصویر, جو بھی نہیں, یہ شخص کی بات ہو رہی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی. جی اس کے بارے میں تو آپ کا رائے, آپ کا کیا رائے ہے سر اس میں, اس کے بارے میں؟ قذاب, دجال, اسلام سے خارج. بس کلیئر ہو گیا. تو بریو بھائی آپ کو اب کیا کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ میں نے 2 بار آپ سے سوال پوچھا, آپ کو جواب نہیں آیا, اس کا مطلب ہے سر نے جو آپ کو سمجھائی. ایک منٹ پلیز بریو بھائی, پلیز سمجھ میں نہیں آئی. جی بریو بھائی, میرا بھی یہی عقیدہ ہے, میرا بھی یہی ایمان ہے کہ کوئی باہر سے آ کے نبوت کا دعویٰ کر لے, کوئی بھی ہو تو ہم اس کو پیغمبر مانیں. عامر بھائی گلہ تتر لگ رہا ہے بھائی, یہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اکرام صاحب, جی جی, کیا یہ آپ کہاں سے ہیں؟ ویسے آپ ہیں کہاں سے؟ میں مردان سے ہوں برادر. مردان سے ہیں تو پشتو سپیکنگ ہیں آپ. ابھی پاکستان میں باہر ہیں؟ باہر ہوں سر. گلف میں ہیں یا یورپ وغیرہ میں؟ گلف میں ہوں سر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 30 ہو گئی. 30 عمر ہو گئی ہے. آپ نے آج تک اس بندے کی فوٹو نہیں دیکھی ہے جو فوٹو میں نے سامنے لائی, تصویر لگائی ہے؟ سر پہلے یونیورسٹی اور اسباق پڑھتا تھا اور پھر ادھر مزدوری کر رہے تھے. اگر اتنا علم ہوتا تو میں سر سے اتنا لمبا چوڑا ڈسکشن پھر کیوں کر لیتا. اچھا ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ اردو میں بات کر رہے ہیں وہ بھی ایران سے ہیں لیکن وہ بڑی صاف اردو بول رہے ہیں پیرسکانی بھائی. اس میں کوئی کسی قسم کی سمجھ نہ آنے والی بات ہے کوئی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں تو کلیئر بتا رہے ہیں. کلیئر جو کچھ انہوں نے کلیئر بتایا ہے آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ بالکل. تو پھر وہ یہ جو بریو لیڈر ہیں یہ کچھ سوال آپ سے کر رہے ہیں اس بندے کے بارے میں اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں. اس کا نام غلام احمد ہے اور اس کے پیروکاروں کو لوگ احمدی کہتے ہیں. یہ خود کو احمدی کہتے ہیں, قادیانی بھی کہتے ہیں, احمدی بھی کہتے ہیں. اب آپ بتائیں اس بندے کے بارے میں اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں آپ بریو لیڈر کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ گرافر صاحب جو ان کو پیروکار ہیں وہ کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہو, قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, قیامت پر یقین رکھتے ہیں, سب پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. آپ بتائیے آپ ان کو کیا مانتے ہو؟ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات ذہن میں رکھنا. روزے بھی رکھتے ہیں وہ, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر مرزائی خلافتی گدی بھی بنائی ہوئی ہے, علم نہیں ہے. اور وہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو آدھا گھنٹہ لگا کے جو انہوں نے اسکانی صاحب نے آپ کو سمجھایا اور ابھی آپ نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آپ کا علم اتنا نہیں ہے. نہیں تو آپ جو کہتے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نبوت کا انکاری ہے وہ اسلام سے خارج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یہ مانتے ہیں نا آپ؟ بالکل مانتا ہوں. اچھا, ان کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس بندے نے,
सर जी माजरत मुझे बोलना पड़ा है, इस बंदे से एक बार ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगवा लें भाई। सारे ना उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाएं यार खुदा के लिए। कोई इधर से बोलता है, कोई इधर से बोलता है। यार आप लोगों ने तो मुझे इतना कंफ्यूज किए हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। एक ऊपर से एक से पढ़ाई गई है आपके ज़हन में जो ज़हर भरा ये गया, एक दिन में समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है। उनके अंदर उसके अकीदे पर क्या है पूरा समझना पड़ेगा, पूरा देखना कोई भी पड़ेगा। फैसला करने से पहले उनका मौक़िफ़ भी जान लेना कि वो क्या कहते हैं, जिसके बारे में आप वही मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और सही मैंने बात किया था। अच्छा अगर ये इकराम साहब बहुत साफ बात है। अभी आप कह रहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिसने नबूवत का दावा किया वो कज़ाब है। कज़ाब है कहा आपने कि नहीं कहा? जी बिल्कुल कहा। अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर भी आप उसको कज़ाब कहेंगे? लेकिन अगर वो मुंह से कहे और अंदर से उसका अकीदा ये हो कि ये शख्स जो है, ये जो तस्वीर लगा हुआ है ये वाला है, तो लाजिमी है फिर मेरी बात वही होगी। मैं ये सवाल वो ये कहे हैं कि ये जो तस्वीर लगी यार गिले तितर आप जरा खामोश रहो ना, आप बीच में ना टांग अड़ाना, बात करने दो, खामोश रहो भाई। जो अंदर है अंदर और ये गिला तितर, ये तितरबाजी ना इधर मत करो, खामोश रहो जरा, बात करने। एक सेकंड यूसुफी भाई, मेरा इतना स्टडी नहीं, मैं उन पे पूरा स्टडी करके कुछ अगर सवालात जी वही है। बाकी जो ये सवालात तो मुझे करने, आप लोग उल्टा मुझसे सवालात कर रहे हैं, मुझे इस बात पे हैरानगी हो रही है। सवालात तो मुझे करने चाहिए। आप सवाल करें सवाल। मैंने सवाल किया कि अहमदी मुसलमान और मुसलमान में क्या फ़र्क है, तो मुझे बहुत तफसीली जवाबात दी गई और मतलब उनका जो अकीदा एकदम क्लियर है अस्कानी साहब का। तो इसके बाद जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई इधर से मुझे उल्टा क्वेश्चन कर रहे, तो ये बेशक कर ले जी। आप ये बताएं कि आपने खामोश नहीं, आमिर साहब को बात करने देना, सवाल वो आमिर साहब से करें। आप सवाल करें भाई, इकराम भाई जल्दी सवाल करें, जितने भी सवाल आपके जहन में है करें, लेकिन जो सवाल आप पूछेंगे अगर आपको ना समझ आए आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अगर समझ आ जाए। मैंने जो पूछना था वो अस्कानी साहब ने मुझे क्लियर कट समझाया, वो हो गया क्लियर। और कुछ सवाल पूछना जी? कोई और सवाल है तो शुक्रिया। और कुछ अगर कोई जहन में आया तो लाजिम कल पूछूंगा, परसों पूछो, अभी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लूंगा। नहीं, अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं रहा तो ये जो बंदा ऊपर जिसको सारे गीला तितर कह रहे थे, ये ब्रेव लीडर जिसका नाम लिखा, वो आपसे पूछ रहा था कि इस बंदे के बारे में क्या ख्याल है, इसके पैरोकारों के बारे में क्या ख्याल है, ये वही कलमा पढ़ते हैं, उसी तरह मुसलमानों की तरह इबादत करते हैं। तो आपने कहा कि मैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अशकानी साहब बोल रहे हैं कि उनका और हमारे अकीदे में फ़र्क है। वो उनको आखिरी रसूल मानते हैं कादियानी, उनको अब अपना आखिरी रसूल, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं। तो एकदम क्लियर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो मानता अच्छा तो अगर है। अब सवाल ये है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अब सवाल ये है कि अगर एक ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शख्स के बारे में आप बहुत उलट पुलट बातें सुने और आप उनके पास जाए और उस शख्स से अपनी मुंह से सुने तो आपके शुकों को शुबहात दूर हो जाते, तो एक अलग बात होती है। अच्छा हाँ ठीक है, ये बेटे हुए हैं चौहान साहब, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये अहमदी हैं, फिर फैसला अच्छा पीर साहब मैं एक छोटा सा सवाल इनसे कर लूँ, छोटा सा मुख्तसरन, आपकी मेहरबानी प्लीज। जी जी बिल्कुल करें। अच्छा इकराम साहब, आपकी माशाल्लाह 30 साल उम्र हो गई है और पाकिस्तान से बाहर आप ट्रैवल करते हैं, रह रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं आप। 30 साल में क्या आपने मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में कुछ पढ़ा या जाना? हाँ। कौन था, उसका क्या दावा था, कुछ पता है उसके बारे में? मुनाफिक था। हाँ मुनाफिक था वो जी। उसका क्या दावा था मुनाफिकत उसके लिए? रसूल होने का दावे करता था।
अच्छा, उसका दावा था नबूवत का या रिसालत का। अगर वही काम करके वो बंदा झूठा मुनाफिक या जिसको आप मुनाफिक कह रहे हैं या झूठा कह रहे हैं, तो वही काम कोई और उसके अलावा कोई शख्स करे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो मुसलमान कज़ाब ने किया, उसके सफ में खड़ा होगा, उसके मानने वाले के सफ में खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ज़रा बोल के वाज़े तौर पे करें ना, आपकी मेहरबानी प्लीज़। वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उसके सफ में ही खड़े होंगे। वो भी झूठे दज्जाल होंगे लाजिमी। यही काम मुसलमान कज़ाब वाला ये ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया है, ये झूठा दज्जाल आप किसको मानते हैं? तो फिर अगर इसने किया है तो ये भी दज्जाल है, झूठा अगर है। किया है, अगर किया है कि नहीं। नहीं यहाँ हाँ, तो वही ठीक है बोल ना, रहा अगर हूँ, उसके अगर इल्म में किया नहीं है। है तो वो यही कहेगा कि अगर किया है तो फिर दज्जाल। तो हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के? नहीं, वो आपकी बात पर इंफॉर्मेशन पर एतबार कर ले, आपसे पहले मुलाकात हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ठीक कह रहा है, कोई मेरे ख्याल में ऐसा मसला नहीं है। वो बंदा तो फिर गीला तीतर भी तो ठीक कह रहा है। नहीं, गिला तितर तो बिल्कुल गीला है उसके तो सारे पर गीले हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी सर, बात ये है कि जो बंदा नबी होने का दावा करेगा वो मुनाफिक है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यही बात वो भाई कर रहा है ना। वो भाई वो कज़ाब है, कि कज़ाब। अगर बोल रहा है तो उसको वो अगर का मतलब ये है कि अगर वही काम करेगा तो वो सेम उसकी तरह वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक कर रहा है, बाकी करें आप मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, आप नीचे ज़रा जाएं, आपकी जगह अब ब्रेव लीडर के सवाल का जवाब आप दे लेंगे? कौन सा सवाल? अभी वो आएगा तो आपसे सवाल करेगा, क्योंकि वो तो इकराम भाई, मिर्ज़ाई की तरह है ना। इकराम भाई, ये जो तस्वीर लगी है जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, इसने नबूवत का दावा कर लिया कि ये नबी है, और इसके मानने वाले अहमदी अपने आप को कहते हैं। आप इस शख्स के नाम मिर्ज़ा जो गुलाम अहमद है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? और इसके मानने सर, मैं वाले इसको एक होता है गुलाम अहमद कादियानी, एक होता है पैगंबर रसूल, उन दोनों में तो फ़र्क होगा ना सर? और होगा नहीं है, क्योंकि कुरान ने क्लियर कट कर क्लियर किया हुआ है। इसमें ऐसा मत कीजिए ना जी, ऐसा मत कीजिए जी। हम पैगंबर रसूल के बारे में आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको इस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जिसका नाम है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। मेरा दावा, मेरा ईमान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, इसके अलावा कोई भी नबी उसके मुकाबले में। मैं नबी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ जी भाईजान, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो कहता है कि वो नबी है, उस पर वही होता है, उसकी वही की किताब है रूहानी खजाइन, वो कहता है कुरान मजीद में जो ये अल्फाज आए इस्मुहु अहमद, वो मैं हूँ। नबूवत का उन्होंने दावा किया, एक तो उम्मत बना दी। कज़ाब हो गया जी। हाँ, ये कज़ाब है, कज़ाब है, झूठा है। ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह नाम ले लीजिए ना, वो लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाब दज्जाल है। जो भी शख्स आए, मैं आपको सर क्लियर फिर से बोल रहा हूँ, जो भी शख्स आए, फिर ये तो बरेवली भी सिर्फ गुलाम कादियानी नहीं, अगर कोई भी इसके मुकाबले में कोई भी आए, तेरस्कानी भाई, वो ब्रेव लीडर ये नहीं कहता, ये बंदा ठीक कर रहा है बात, उसकी जुबान में थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक नहीं कर रहा, जो की बात नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने दावा किया नबूवत का, क्या ये कज़ाब दज्जाल है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी या नहीं? कज़ाब दज्जाल है। कौन कज़ाब दज्जाल है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। और किस तरह से आप कहलवाना चाहते? अच्छा, मेरा ख्याल है उनका नॉलेज ज्यादा नहीं है। अच्छा, आपके पाकिस्तान में कितनी तालीम हासिल की थी आपने? सर मास्टर किए हुआ हूँ। ओह, किस सब्जेक्ट में? अच्छा ब्रेव साहब, इसने तो कज़ाब दज्जाल कह दिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को, अब आप बोलो। एक मिनट, अभी उनको देंगे मौका, एक मिनट उनको देंगे मौका। सबर मैं आपको देता हूँ मौका ना, सबर करो ना।
अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया यार, हैरान कोई बात नहीं है। जी। आपने बीए में कौन से सब्जेक्ट रखे थे ग्रेजुएशन जब की थे? डबल इंग्लिश पढ़ा हूँ और उर्दू पढ़ा हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा हूँ। आपने ग्रेजुएशन करते हुए कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा हुआ था? सर मैंने इंग्लिश रखा हुआ था। इंग्लिश तो लाजमी होती है ना? तो 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, 4, और 2 इंग्लिश लिए, 1 उर्दू लिया और 1 इस्लामिक स्टडीज़ लिए। इकराम भाई, कुछ लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन ऑप्शनल में मैंने इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू रखा ना सर। इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू रखा जी। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, इस्लामिक स्टडी तो लाजमी है आमिर भाई। नहीं, वो एक लाजमी है, एक ऑप्शनल भी होती है इस्लामिक स्टडीज़। वो ऑप्शनल भी रखी थी? ऑप्शनल भी रखी थी आपने? ऑप्शनल मैंने इंग्लिश रखा था। हाँ यार, 100 नंबर की तो लाजमी है ना, इंग्लिश भी और इस्लामियात भी। सुनिए ना सर, 4 सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के। हाँ। 4 में से 2 जो है वो कंपलसरी होते हैं। हाँ जी। असल में वो कंपलसरी लफ्ज मेरी जुबान पे नहीं चढ़ रहा था, मैं ऑब्लिगेटरी कहने वाला था, लेकिन मैं रुक गया कि नहीं, ऑब्लिगेटरी से लफ्ज नहीं। वो 4 कंपलसरी हुआ करते थे पहले, अब 2 होते हैं कंपलसरी। नहीं, मैंने 2013 में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, 2013 में आपने किया है, तो भी कोई इतने ज्यादा साल नहीं हुए, 10-11 साल ही हुए हैं आपको। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि इस्लामिक स्टडीज आपने एक तो कंपलसरी था ना 100 नंबर का। जी जी। एक 100 नंबर का, और आपने दूसरा भी लिया, ऑप्शनल भी लिया था? नहीं 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 नहीं, आपके पास आपके हाँ पता नहीं कैसा सिस्टम है, हमारे यहाँ ये सिस्टम है। एक इंग्लिश है, इंग्लिश तो मतलब वो लाजिमी है, वो आप न चाहते हुए भी लेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है उर्दू, उर्दू भी आपने लाजिमी लेना है। 2 सब्जेक्ट आपके इख्तियारी हैं, उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है। मैंने एक इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ किया और एक इंग्लिश चूज़ किया। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ में अपना सिलेबस थोड़ा सा मोटा मोटा बता दें, क्या था? हिस्ट्री थी, अरबिक थी, ट्रांसलेशन थी, या कोई ग्रामर थी, क्या था उसमें? हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री पढ़ा और तर्जुमे कुरान पढ़ा। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? हिस्ट्री में सहाबा रसूल की तारीख़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत थी, सहाबा की तारीख़ थी, और जी। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। उनके बारे में क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिशारतें दी थी? जी, मेरा जिगर गोश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उसको खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने उनको तकलीफ थी उसने मुझे तकलीफ। वो तो बेटी के बारे में, वो तो सईदतुन नसा उनके बारे में, उनके आल, पूरे आल के बारे में, सिर्फ उनके बारे में नहीं। नहीं, वो सईदतुन नसा के बारे में। अच्छा, बहरहाल जी, मैं वैसे आलिम नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आलिम नहीं हूँ। मैं उस तरह का इल्मी सवाल नहीं पूछ रहा। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको कर रहा हूँ, 13 में कोई ग्रेजुएशन कर ले तो मैं मुझे ऐसा क्लियर कट इतना आंसर आपको नहीं दे सकते। नहीं, कोई बात नहीं है, कोशिश कर लेता हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें अपना इकराम भाई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जानते तो है ना सैयदना हुसैन के बारे में? जी बिल्कुल। हाँ, वो नबी के नवासे थे, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, नबी अलैहिस्सलाम को बहुत प्यारे थे, आपके कंधों पे सफ़र किया करते थे। ये इस बंदे की तस्वीर है, ये इस बंदे की अपनी लिखी हुई तहरीर का मैंने सफ़ा लगाया राइट साइड पे, जो सुर्ख लाइन लगी हुई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये फ़ारसी में इसने अशार लिखे हुए हैं, करबलायस्त शेर आनम सद हुसैन अस्त दर गिरेब आनम। कहता है कि मैं तो कोई झूठा दावा कर ले सर, मैं उसको कैसे मान सकता हूँ? नहीं, आप सुन तो लें, पूरी बात सुन तो लें ना, लंबी बात मैं नहीं करूंगा। थोड़ा माइक के शोर आ रहा है, पीर अस्करी में शायद आपकी तरफ से शोर आ रहा है। वो फारसी में उसने शेर लिखा हुआ है, करबलाइस्त शेर हर आनम, हर आनम यानी हर लम्हा मेरी करबला की सैर होती है। सद हुसैन अस्त दर गिरेब आनम, 100 हुसैन मेरे जेब में है, मेरे गिरेबान में है, मेरे
गिरबान में है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहता है 100 हुसैन मेरी जेब में है। जेब का नहीं पता ये क्या कहना चाहते हैं, 100 हुसैन मेरे जेब में है। अच्छा ठीक है। इसका एक मुरीद था, उसका नाम था अब्दुल लतीफ़, वो काबुल से था। तो उसने इसकी बैत की तो अमीर काबुल ने उसको कत्ल करवा दिया। ये आपकी पैदाइश से बहुत पुराना। आप किस साल पैदा हुए हैं? इतनी दकीक मज़ामीन 92। वो आपके पैदा होने से कोई 90 साल पहले का वाक़या है। जब वो बंदा कत्ल हुआ, अमीर काबुल ने उसको मरवाया, तो इस बंदे ने कहा कि ये जो मेरा मुरीद है इसकी शहादत सैयदना हुसैन की शहादत से बढ़कर है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो तो मैदान करबला में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से निकलने का। लेकिन मेरा जो मुरीद है इसके पास तो ऑप्शन था, मेरी बैत तोड़ देता तो अमीर काबुल उसको ना कत्ल करवाता, लेकिन अमीर काबुल ने उसको कत्ल करवा दिया। और मेरा मुरीद, उसकी शहादत हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर है। अब भी समझ आई बात कि नहीं? मुश्किल बात मैंने की है? बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल बात आपने कही, समझ नहीं आई मुझे आपको ना? समझ में भी नहीं आई। अच्छा, ठीक है। मेरा चलें ख्याल आप। वो दोबारा आ जाएंगे तो आज के दिन के लिए काफ़ी हो गया। हाँ ठीक है, आप दोबारा आए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कोई जल्दबाज बंदा नहीं है, ना ही हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं, आप भाई हैं। ज़ाहिर फतवा ज़ाहिर पे लगता है। जो कुछ आप बाहर बात कर रहे हैं, खामखा से आपके अंदर झांकने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी बात आपको समझ आई आपने बयान किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये सख्त गुस्ताखियाँ हैं। अगर कोई बंदा हज़रत इमाम हुसैन से बढ़कर होने का दावा करे और कहे कि मैं हज़रत इमाम हुसैन से बढ़कर हूँ, ये भी लिखा हुआ है कि तुम कहते हो कि मैं हसन और हुसैन से बढ़कर हूँ। हाँ मैं बढ़कर हूँ, मेरा खुदा साबित कर देगा मैं उनसे बढ़कर हूँ। मिर्जा साहब ने कहा मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर हूँ। हाँ, सारे नबियों से बढ़कर हूँ सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये बात शायद उनको सर आप समझ उसमें नहीं। मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी में आप मानते हैं? नहीं, हम तो बता रहे हैं कि ये बातें उसने अपनी किताबों में लिखी हैं। तो सर आप मुझे फिर इसके बारे में क्यों समझा रहे हैं? वैसे जब आप पूछ नहीं मानते, आपसे राय ले रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आपसे राय ले रहे हैं कि जो बंदा इस तरह की बात करे उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो आपकी क्या राय है? मुझे तो आपसे भी पूछना चाहिए ना कि हाँ बिल्कुल पूछें। हाँ आप मुझसे पहले पूछें, कोई मसला नहीं, आप भाई हैं। जो बंदा ये कहे इसके बारे में क्या राय है? हाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो इसको सख्त कज़्ज़ाब और दज्जाल और मलून समझता हूँ, क्योंकि जो बात अभी तो फिर आप मुझे इसके बारे में पूछ के आपको फिर क्या हासिल करना सर? जब आपको एक शख्स कज़्ज़ाब, झूठा, दज्जाल लग रहा है तो फिर मुझे मतलब मेरे मुंह से उसके लिए फिर अच्छाई बताना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं सर? फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपसे अच्छाई हमने क्यों सुननी है? हमें यकीन है कि आप मुसलमान हैं, तो आप भी मुसलमानों जैसे ही अकीदे का और उस अकीदत का इजहार करेंगे कि जो बंदा हज़रत इमाम हुसैन के बारे में इस तरह की बात करता है। सर हाँ, मुझे इतना नहीं इल्म, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह की किताब, मुझे इन दोनों पे ईमान है। मुझे इसके बाद कोई भी आया, खासकर पिक्चर उसका लगा हुआ हो। आप हनफी जी हैं? मैं सिर्फ कुरान और हदीस पे बिलीव करता हूँ। मैं हनफियत को, इन चीज़ों के कुरान और हदीस के सामने किसी का कोई कुरान और हदीस को कैसे समझते हैं? आप अरबी जानते हैं? जी मैं अरबी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत जानता हूँ, इतना तो नहीं हूँ, बट जितना मुझे मेरे नॉलेज में है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अगर आपके सामने यहाँ कुरान की आयत चाहिए, ठीक है, अगर आपके सामने कुरान की आयत यहाँ रखी जाए तो आप खुद समझ लेंगे। आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं सर? नहीं, तो आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कुरान और हदीस को कैसे मतलब इतने क्वेश्चन तो कभी किसी ब्रॉड में नहीं हुई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इकराम भाई
कह रहे हैं कि जो इतने टाइम से आपको समझाया, आपने सवाल किए, उनका जवाब दिया, क्या आपको उनकी कोई समझ भी आई है या नहीं, वो ये आपसे पूछना चाहते हैं, और को नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी काफी दम रखते हैं। आप उसकी गुलो खलासी कर दें बेचारे के साथ। बहुत ठीक है इकराम भाई, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। नहीं, मेरे साथ तो या कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स आपके पास आए और आपसे आपके बारे में जानना चाहे, या फिर उसका एक शक हो, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस और आंसर जो हुए अशकानी साहब के साथ हुए। बाकी तो आप सब ऐसा है कि मतलब मेरा एग्ज़ाम ले रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर आपके पास कोई बंदा आए, अगर आप इस शख्स के साथ जो इधर लिखा हुआ है गुलाम अहमद कादियानी, अगर आप इसके साथ कायल है तो मैं कभी भी उसकी बुराई नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि आप फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करेंगे और कुरान मुझे इससे मना करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो मतलब ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो खुद एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके पास आया, तो आपने एज अ स्टूडेंट मुझे प्रोटेक्ट करना है, न कि आपने मतलब मुझसे प्रोफेसर बना के मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सुने मेरी बात, आपकी उम्र है 30 साल, आपको 12-13 साल हो गए हैं, आप खुद कफील हो गए हैं, आप अपने नफ़े और नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं, आप अपने गुनाह और सवाब के खुद ज़िम्मेदार हैं, आप बालिग हैं, आप बच्चे नहीं हैं। आपसे कोई बंदा ये अकीदा या इस तरह की बात पूछे और आप कहें कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, या आप कहें कि मैं तो चलें एक चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, कोई बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसका बजाय इसके कि आप शुक्रिया अदा करें और बताएं कि हाँ ये पहले मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का कोई ग्रोह है। आप तो अजीबोगरीब बातें आप खुद कर रहे हैं और अपने आप को इस तरह का बना के पेश कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, किसी ने आपको हथकड़ी नहीं लगाई हुई। लेकिन अजीब बात आप कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं इसको बुरा भला नहीं कहूँगा, अल्लाह के नबी ने इसको कज़्ज़ाब कहा है। आप अल्लाह के नबी को छोड़ आप कहते हैं मैं इसको बुरा भला नहीं, कज़्ज़ाब कहना बुरा भला है। एक सेकंड सर, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार भी है, यहूदियों के भी है, मूसा अलैहिस्सलाम, तो क्या हम जाके अभी यहूदियों को गाली दे के आपने गलत मज़हब इख्तियार किया है? भाई ये हमारा हक ही नहीं है, ये गाली हम नहीं कह सकते सर, हम नहीं कह सकते। मेरी सुने जी इकराम साहब, कुरान ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना, मैंने अपना अकीदा जाहिर किया कि आपको मैंने अकीदा जाहिर किया कि दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है। इसके बाद मतलब मैं उसको क्या कहूँगा? वो तो हो गई ना मेरे भाई, वो तो हो गई। तो क्या कहना चाहिए? मेरा मतलब है कि आप खामखा इस पे गुस्सा कर रहे हैं कि भाई मैं आपसे सवाल करूं। मैंने तो आपको कहा कि आपने जो सवाल करना है आप हमसे कर लें। आपने कहा मेरा सवाल क्लियर हो गया, कोई मैंने सवाल नहीं क्लियर हो गया। जी मेरा सवाल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको कहा कि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है, सवाल करना चाहते हैं नाराज मत हो जाइए। आप भी नहीं बस शुक्रिया, रिलैक्स में, कोई मसला नहीं। ब्रेव साहब के सवालात हो गए? नहीं हो गए इकराम भाई, बैठो एक मिनट, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अब बोलना नहीं, सिर्फ इकराम साहब बोलेंगे। इकराम साहब ब्रेव भाई बहुत अरसे से जी ब्रेव भाई आप भी कहे यार, क्या याद रखोगे? अच्छा आपको इन लोगों ने बताया कि मजा आपको भी आ रहा है वैसे इकराम भाई। यार चौहान साहब आप तो खामोश रहो, जब मैं बोलता हूँ आप बीच में अपना माइक खोल देते हो। यार मैंने तो कुछ कहा नहीं। पहले आप खामोश रहे, इतनी देर मुंह पे हाथ रखे रखा, जूल में बोला आपने भी डोल पीटना शुरू कर दिया। बोलिए अभी कोई इकराम साहब और इकराम साहब को बात करने दीजिए। हाँ बस वो आपने जवाब इनका देना। ब्रेव साहब जो है ना वो थोड़े बीमार हैं, इसका ख्याल रखना आपने। नहीं ये बीमार खुद है, ये लोगों के ज़हनों में जहर भरते हैं और दूसरों के जो है ना उनके सीधा बात करो, जो बात करनी है बात करो। हमारे बारे में इकराम साहब ये बताएं कि ये इन लोगों ने जो आपको बताया अहमदियत के बारे में और मुसलमानों के बारे में, तो आपने क्या समझा कि जो अहमदी हजरात थे वो बेहतर हैं या जो सिर्फ मुसलमान बेहतर हैं? और ये जितने भी ऊपर सर बैठे थे आपके ख्याल में ये अहमदी हैं या सिर्फ मुसलमान हैं? आपने क्या पाया इनसे? ये दो सवालों के जवाब दीजिएगा। वो जो एक सवाल कीजिए उसका जवाब दूंगा, फिर दूसरा पहला सवाल ये है, अभी जो बैन स्क्रीन पे बोल रहे थे भाई साहब, आपने क्या समझा ये अहमदी हैं या सिर्फ मुसलमान हैं? इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अशकानी साहब मसलक है इनका, जो पैरोकार हैं, ये जो जिनके बिलीव्स हैं, जो इनके अकायद हैं, वो अहमदियों वाले हैं
या मुसलमानों वाले हैं? सर अब मैं उसके दिल में नहीं बैठा हूँ कि मैं दिल के अंदर टटोर के दिल को अंदर जी बात उससे मुझे वो कादियानी पे लानत बेचता है, वो कादियानियों पे लानत बेचता है। तो कादियानियों पे जब आपने लानत भेजा तो मैं आपको मुसलमान समझूं या कादियानी समझूं? क्या बात है इकराम भाई, आप बेहतरीन, वेरी गुड, मजा है आपके जवाब का, वेरी गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेव भाई दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे थे ब्रेव भाई। दूजे जो कर रहा है नहीं हो बेचारा। अच्छा ये जो जी जी कीजिए, हंसिए, रोइए, कहिए। ये देखें आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपने जो जवाब दिया इसके जवाब के ऊपर ये लोग आप पे हंस रहे हैं। बेशक हंसने दो, मैंने तो उस पे पाबंदी नहीं लगानी कि कौन हंसेगा और कौन नहीं हंसेगा, जो मर्जी आए कहें। ये गिला तितर ब्रेव साहब, ये आपकी जहालत पर हंस रहे हैं, वो पढ़ा लिखा बंदा, बेहतरीन गुफ्तगू की उसने। भाई तो बात तो करने दीजिए इन दोनों को। उनके ज़हन में बातें डाल रहे हो, वो सुन के हंस रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि देखो मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो। और उन्हें मसाल ब्रेव भाई क्वेश्चन स्ट्रेट पूछिए प्लीज। मैं उनके खिलाफ नहीं बात करूंगा, उनको बुरा लगेगा, उनके जो भी अकायदे हैं। ब्रेव भाई जी बताइए। अच्छा ये सवाल है आपसे कि ये जो अहमदी मुसलमान जो आप कह रहे थे, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, तो मैं 50 बार बोल दिया, कितनी बार बोला? एक मिनट, हर समझ आ गया कि नहीं होना और गिल्ले तितर और गिल्ले तितर और तन्नू 2 हफ्ते की गल समझ नहीं भी आंदी है, तू है ही मरजाई है, तन्नू 2 हफ्ते की गल समझ नहीं आ रही। तो वो वे इकराम साहब जेडे ने अद्धे घंटे नहीं तो घंटे ही समझ आ गई गल उन्होंने। तू 2 हफ्ते का ते ड्रामा लाया है कि तेन पता नहीं पा लगता मिर्जा साहब दावा नबूवत का कीता कि नहीं कीता, हरे दजाल है ने कि नहीं, हरे कज़ाब है ने कि नहीं, की तू ड्रामा लाया लोगों नाल? तो दोबारा आपने उसको पढ़ाई है ना पट्टी, इसलिए वो आपके जो जुमले बोल रहे हैं। हाँ मैंने पट्टी पढ़ाई है। और कोई क्वेश्चन है? और कोई सवाल है? जी जी आमिर भाई सुन लीजिए। थैंक यू। आमिर भाई सुन लीजिए, आमिर भाई मेरी बात सुन लीजिए। आपने सवाल सुना ब्रेव साहब का, क्या कहा? कहा कि मुसलमानों का, अहमदियों का, दोनों का अकीदा सेम है। आप बताइए। मैंने दोनों का अकीदा नहीं सेम कहा, मैंने कुछ बातें कही हैं सेम है, कलमा एक पढ़ते हैं अल्लाह पे। मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ना, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होते हैं। ये जो अहमदी जिसको आप कह रहे हो ना, ये कादियानी जब कलमा पढ़ते हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे कलमे में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी दाखिल है। यानी जब वो कलमा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी भी है। सवाल है तो कर लें इससे इकराम भाई से। इकराम भाई अभी तो आप कह रहे थे आपको गुस्सा आ रहा है, इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? अब आप खुद चाहते हैं सवाल करें? नहीं, क्योंकि आपको मजा आ रहा है तो मैं सोचता हूँ आप थोड़ा और भी मजा लें। जबरदस्त। नहीं आप उन्होंने आपकी पट्टियां पढ़ी है, तो ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है। जी ब्रो भाई पूछ सकते हैं तो पूछिए। उनको 2-4 फूल मिल गए ना तो वो खुश हो गए कि मैंने जाता। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर जी मैं इधर न पूल बांटने आया हूँ न मैं पूल समेटने आया हूँ। मुझे इल्मी मुकालमे पसंद है, वो मैं तालिब इल्म हूँ, हर जगह से सीखता हूँ। अच्छा इकराम जी सर, ये बताइए, पूल जेब में रखिए। ये तो इन्होंने आपको ट्रेंड कर दिया है, आपका ब्रेन वॉश हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। ब्रेन वॉश आपका अपना अकीदा क्या है? आप इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लाम के कितने अरकान हैं? मेरा ब्रेन वॉश तो शायद पैदाइश में जब मेरे एक कान में अजान दी गई और दूसरे कान में इकामत दी गई तब से मेरे ब्रेन जो है वो शायद वाश है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी मुसलमान, एक सेकंड सर एक सेकंड सर, आप मुझसे सवालात ऐसे कर लें कि इसमें आपको फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ की नॉलेज नहीं हो और मैं बताऊं तो शायद आपकी इल्म में इजाफा हो। मकाना और बच्चों वाली सवालात। जी 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 आपको और फूल मिलेंगे। अपने इस्लाम के बारे में बताओ। सर मुझे फूल, मैंने आपको कहा आपका प्यार सर आंखों पे, लेकिन मैं फूल समेटने नहीं आया। अच्छा नहीं आया, चलो मान लेता हूँ मैं, आप फूल समेटने नहीं आए।
یہ بتائیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ آپ کو یہ تو بتا دیا گیا، پٹیاں پڑھا دی گئی، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون جانتی ہے، کون جہنمی ہے، کون ملعون ہے۔ کس کو پٹی؟ یہ نہیں بتایا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 1 گھنٹے سے ادھر کھڑے ہو۔ سر دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہتر ہے یا کسی کا عقیدہ بہتر کرنا ضروری ہے؟ کس کے اوپر میں نے انگلی اٹھایا سر؟ میں نے کس کے اوپر انگلی اٹھایا؟ آپ یہاں سے فائدہ لے کے گئے ہو یا نفرت سمیٹ کے جا رہے ہو؟ آپ کو ان لوگوں نے اتنا تک نہیں بتایا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، آپ کا عقیدہ نہیں درست کرایا، آپ کا ایمان نہیں درست کرایا، آپ کے ایمان کتنی چیزوں کا یہ نہیں بتایا۔ ایک سیکنڈ، آپ میرا ایک سیکنڈ میری بات سنی۔ آپ بول رہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں پھر آپ کو جی تو پھر آپ کو کیا ملے گا یہ بتائیں؟ آپ مانیں گے پھر مسلمانیت مانیں گے؟ کیا ہے دوسروں کے بارے میں تو آپ نے میرا اپنا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ تو مسلمان زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی ایسے ہی غیر مسلم اٹھ کے کہے میں مسلمان ہوں تو کہ مان لیں گے؟ ہم اس سے سوالات پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں اس کے مجھے مسلمان نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ اچھا چلے دوسرا سوال، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگ ہیں ان لوگوں نے آپ کو یہ تو نہیں بتایا، آپ کا عقیدہ نہیں درست کرایا، آپ کے قائد نہیں درست کرائے، باقی مجھے عقیدے درست کرنے کی ایک سیکنڈ کتنے ارکان ہیں؟ ایک مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے؟ 1 2 یا 3 یہی بتا دیں۔ ہمارے ہاں جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارے ہاں یہی رٹا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تو کلیئر ہے، میں اور کیا کہوں آپ کو؟ اور کوئی ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ تو لیجئے۔ اکرام بھائی سے بولو جو میں نے پڑھا ہے نا یہ دہرا دے، اسے بولو جو میں نے پڑھا ہے نا اس کو دہرائے۔ نہیں میں نے پڑھا نہیں، میرا اس پہ ایمان ہے اس لیے میں دہرا رہا ہوں۔ نہیں اب اس سے پوچھیں نا اس کا کس پہ ایمان ہے، اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں۔ ہاں بریو بھائی آپ کا کس پہ ایمان ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقائد درست کرنے چاہیے، پھر دوسروں کے عقائد درست نہیں۔ عقائد چھوڑیے آپ کا کس میں ایمان ہے؟ دوسرے کے ذہن میں زہر بھرے، آپ کا کس میں ایمان ہے؟ آپ کا کس میں ایمان ہے؟ نفرت بڑے ایسے تو واقعی خاموش ہو گئے، رکھے آپس میں لڑوائے، 2 گروپوں کو لڑوائے آپس میں۔ آپ کا نہیں چھوڑیے 2 گروپ یار، 2 اور 3 گروپ کی بات نہیں ہے، آپ کا کس میں ایمان ہے؟ اکرام بھائی اسے بولے جو میں نے ایک سیکنڈ بریو بھائی سے مجھے کوسچن کرنے دو، اس نے کوسچن کیا میں نے تو عربی میں جواب دیا۔ سارے خاموش ہو جی ایک سیکنڈ نہیں بریو بھائی آپ کا کس میں ایمان ہے؟ پلیز تھوڑا سا اپنا عقیدہ کلیئر کر لو۔ اچھا آپ کا کس میں ایمان ہے ذرا اپنی زبان میں بتائیں۔ وہ تو آپ نے رٹا لگایا ہوا بتا دیا۔ نماز آتا ہے آپ کو؟ نماز آتا ہے؟ ہاں نماز آتا ہے آپ کو؟ ہاں ابھی پڑھ کے آیا ہوں۔ نماز آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ نہیں نماز تو آتا ہے، اس کو پڑھتا ہے سر۔ نماز آتا ہے آپ کو؟ ایمان والی بات کچھ جی نماز آتا ہے نا سر آپ کو بریو لیڈر؟ جی نماز آتا ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں، ابھی بھی میں نماز ہی کی تیاری کرنے والا تھا، ابھی پڑھ کے آیا ہوں سر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویتر میں ہم کون سی دعا پڑھتے تھوڑا سا سنائیے سر۔ ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ اشکانی صاحب پلیز ایک سیکنڈ۔ نہیں ایک سیکنڈ پلیز مرزا کے بارے میں پوچھ لیجیے نا بھائی۔ دعائے قنوت پڑھیے سر۔ سر دعائے قنوت 2 ہیں، کون سا پڑھوں؟ ایک وہ ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا وہ ہے جو عام جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بریلوی حضرات ہو گئے اور جو بندی ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نہیں دونوں کے بارے میں حدیث ہے نا، میں کون سے پڑھوں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھیے، جو دونوں ہے پھر دونوں پڑھیے۔ ایک تو اللہ نستعین کو ہے، دوسرا ہے اللہ مادنی۔ پورا اللہ نستعین کا پڑھے۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مان لیں گے؟ وہی ہوگا جو آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے جواب دیا، پھر وہی ہوگا۔ اچھا چلے پڑھیے، بسم اللہ، میں سن رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر
वनशकुरुका वला नखुरुका नखलो नतरुको मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए, वनख्शा अज़ाबका इन्ना गलत अज़ाबका गलत पढ़ रहे सर, और कितने सर गलत पूरा पढ़ रहा है गलत ना, पढ़ मार गलत पढ़ रहा है पूरा जबर जेर में इतनी गलतियां हो गई आपकी सर, बहुत गलतियां हो गई है। मैंने जल्दी पढ़ा तुझे गलत पढ़ रहे हो, नहीं आया, मैं कहाँ पहुंचा कहाँ पढ़ा। बहुत गलत पढ़ रहे हो सर, पूरा नहीं, गलत पढ़ नहीं लिया पढ़ा, सर, मैंने सही पढ़ा है, मैं हर रोज वितर के पूरा बाद पढ़ता हूँ। वल्ला गलत पढ़ लिया, हम अब वितर इससे में इसके पढ़ते, ईमान वितर के के बारे में बाद ये नहीं पूछिए, इसका पढ़ते। ईमान क्या है? हाँ ये मैं कह सकता हूँ, छोड़िए। मैंने जल्दी में पढ़ा है, मैंने सर- जल्दी में इसलिए पढ़ा सर- ताकि तेरी ज़हन में सर- ना आए, तुझे ये ना पता चले मैं ये कहाँ मेरा- पहुंचा हूँ कहाँ नहीं। सर तेरे ये ज़हन मेरा में तो ब्रेन मुझे वॉश पकड़ नहीं करने के सका, बारे इसलिए में कह रहे हो सोच गलत रहा पढ़ा था, है। लेकिन तुम इसको मुझे अब मेरी पकड़ बातों नहीं की सके, तुम मेरी स्पीड को पकड़ सर नहीं सके, मैं भी मेरे साथ बोलूं चल आप नहीं भी सके। बोलेंगे मैं भी बोलूं आप भी बोलेंगे तो फायदा क्या है, एक बंदा बोले तो मजा आता है, सही है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको सही बताया, आपने मुझे गलत बताया, पूरा हर हुरूफ और सकनात पूरी गलत थी। आपने कहा वितर के बाद पढ़ता हूँ, वितर के बाद ही नहीं, वितर के अंदर है, इतना भी आपको किसी ने नहीं समझाया। पहले कह रहे हो माशाल्लाह जबर देर में करती, आप कह रहे हो वितर के बाद पढ़ते हो। ये दुआ कुनूत पता है किधर पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब किधर पढ़ते हैं बताइए। वितर की एक रकात पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो। जी। आप कितनी पढ़ते हो जी। मुझे बताओ पहले, तुम कितनी मैं रकात 3 ही पढ़ते हो पढ़ता हूँ, वितर की? कितनी? मैं 3 भी पढ़ता हूँ, 1 भी पढ़ता हूँ जी। अच्छा, तो वितर के ये दुआ कुनूत कब पढ़ते हो? मैं तो ये तो सवाल मेरा है कि आप किधर कब पढ़ते हो? मैंने तो बताया जब आखिरी रकत में पढ़ते हैं, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो या 1 पढ़ो, जी जी आखिरी जी रकत में पढ़ते हैं। आप तुम बताओ आखिरी रकत में कहाँ पढ़ते हो? नीचे बैठ के पढ़ते हो अल्फाज या तो- सजदे में पढ़ते हो, रुकू में पढ़ते हो, खड़े कहाँ होके पढ़ते हो? पढ़ते हैं। सरकार इतने तो हम मासूम नहीं इकराम है भाई यार, इसके जितना बारे आप इसका समझ ईमान के बारे में पूछे, इसका ईमान किस पर है? बस छोड़िए सर, मेरा ईमान खुद कमज़ोर है, मैं दूसरों के ईमान के बारे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये छोटी बात है नहीं है सर, समझ आया? ये तो बहुत बड़ी बात है। ईमान कोई मजाक चीज़ थोड़ी है, कोई खिलौना है ईमान जो कोई प्लेट में रख के भाई ये उसका ईमान है। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, शुक्रिया सर। अच्छा नाराज ना है, चलो ठीक है। और नहीं 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 अच्छा हुआ अशकानी साहब, मेरा ब्रेन शायद आपका भी ब्रेन वॉश हो चुका होगा, ब्रेव का भी। अब ब्रेन वॉश मत, इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैं आपसे ये तासुर लेके जाऊं कि आप मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ, वो ब्रेव जाते लीडर जाते कह रहे ये हैं बात आपका अपने ब्रेन साथ वॉश हो ले गया। जाते ले जाइएगा। ब्रेव मेरी भाई को आखिरी मैंने बात- सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मुझे बोला आपको क्या मिलेगा, मेरा वाला सवाल मुझे दोहरा के मुझे कह रहे हैं आप, और बहुत शौक था उसको मुझसे सवालात करने का। अशकानी साहब स्पेशली थैंक्स फॉर यू, बस आप अच्छे लगे क्योंकि आपने मुदल्लिल गुफ्तगू की, बाकी तो अनाथ शनात आपके साथ बैठे हुए हैं। लो बस सबको गाली दे के जा रहे हो जाते हुए सबको गाली दे रहे हो। ज्यादा सादगी जो होती है ना वो अमल भाई खतरनाक होती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत खतरनाक। ब्रेव लीडर बाहर तेरा सही इलाज करके गया। तेरी मंजी ठोक गया है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਕੇ क्या कहना, तो अनाज शनाज बैठे हुए ऐसे ही चलो कोई नहीं गल, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उसको तबलीग नहीं की, मैंने उसका ब्रेन वॉश नहीं किया, जो कर रहे थे उनको कह गया ये तो अनाज शनाते हैं ऐसे ही। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼। ये ब्रेन वॉश सही तनु झूठा दज्जाल यही नहीं कह पता। गया। असकानी साहब को कह रहा है आप अहमदी, आप मिर्ज़ई हो या कादियानी मुस्लिम हो, कौन हो आप? नहीं, आखिर में जाते जाते वो लेकिन ये कह तेनों रहा झूठा दज्जाल कह के गया। मैंने भी कह के गया, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। तेरी तो मंजी दावना तो फाड़ के खड़ी कर गया ना। साहब उसको तबलीग करते रहे, गल ये सुन, ऐसे है, गिले एमडी तितर ऐसे है, एमडी ये ओ गिले करते तितर, हैं। गिले तितर गल तो सुन, गिले तितर मैं कहना तेरी मंजी दावना तो फाड़ के सिर पर ने खड़ी कर गया ना। मेरी मंजी नहीं, तुम्हारी मंजी ठोक के क्या कहना है, ये तो अनाज शनाता है। असकानी भाई ठीक है, ये जो इनके साथ बैठा है ये तो अनाज शनाता है ऐसे ही। कोई ये मसला नहीं, बैठा नाल कोई बैठा है। मैं उसके ऊपर ਜਿਹੜਾ वो ਬੰਦਾ नीचे ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ ਬੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਕੀਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ए दुनिया दी इज्जत प्यारी नहीं है। अकीदा आपने ठीक कराया, उसको पता ही नहीं है अभी 80 मिनटां च बंदा ब्रेन वॉश करता तेरे बकोल, ब्रेन वॉश तू आख्या हो गया अकीदा दुरुस्त कराया ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ मुनाफिक ना होवे ब्रेव लीडर, काफिर होवे मुनाफिक ना होवे, काफिर होवे मुनाफिक ना होवे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਿਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,